Bismillahirrahmanirrahim. Honorable, respected teacher and my dear classmates, Assalamu alaikum. Myself Dua Uruj here, and I am here for giving my presentation of my elective subject mycology. So my topic of today's presentation is different Android applications for the identification of fungal diseases in plants. Proceeding to first slide, we have introduction. So my introduction has points. So artificial intelligence technology, AI, has been spreading worldwide with its so many usages. So is in medicinal field too. Whether it is identification of disease or treatment of disease, it has worked excellently by providing vast surface of knowledge and technology. So as we move to agricultural side, AI has also spread its roots in its side too. Basically, its aim is to work finely without expense of a lot of time and money. My next slide is overview of fungal diseases in plants. So I have choose some fungal diseases which is caused by fungus and mildew. Effects of a wide range of plants causing a white powdery growth on leaves and stems, leading to the reduced photosynthesis and stunted growth. Second is downy mildew, typically affects vegetables and ornamental plants, causing yellow or brown spots on leaves, often accompanied by a fuzzy growth underneath. Botrytis blight, grey mold, affects various plants causing greyish brown fuzzy patches on leaves, flowers and fruits, leading to rot and decay. Fusarium wilt attacks a wide range of plants including tomatoes, causing wilting, yellowing and eventual death of the plant. Next is verticillium wilt, affects many trees, shrubs and herbaceous plant, causing wilting and yellowing of leaves, often leading to the branch death of the plant. Anthracnose, common in trees and shrubs, causing dark sunken lesions on leaves, stems and fruits, leading to defoliation and reduced fruit yield. Number 7 is rust, attacks various plants including cereals and ornamentals, causing rusty colored lesions on leaves, leading to reduced photosynthesis and yield loss. Root rots caused by various fungi. These diseases attack plant roots, leading to stunted growth, wilting and eventual death of the plant. Slide depends upon threats of fungus to agricultural productivity. As we all know that pathogens create so many threats to our agricultural productivity, but here I am just indicating the threats which are caused by fungus. So following are the threats: crop diseases. Fungi can cause diseases in crops, leading to yield losses and reduced quality. Examples include wheat, rust, rye, potato blight. So बात सिर्फ इतनी सी है कि जब भी कोई पैथोजन इंट्रोड्यूस होता है तो ऑब्वियसली इट्स एन ऑब्वियस थिंग कि एग्रीकल्चर हो या कोई भी ऑर्नामेंटल प्लांट हो या कोई भी फ्रूटिंग प्लांट हो, उनको बहुत सारे थ्रेट्स आ जाते हैं. उनमें क्रॉप डिजीजेस आ जाते हैं. पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस. पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस में क्या होता है कि हार्वेस्टिंग हो चुकी है लेकिन उसके बाद वाइल वी आर पैकिंग दैट एग्रीकल्चरल फील्ड और जो उनकी यील्ड है वो खराब हो जाती है. सॉइल बॉर्न डिजीजेस, द डिजीजेस विच अफेक्ट्स रूट्स. सॉइल में वो फंगस हो, सॉइल से वो फंगस आ गया हमारी रूट्स पर एंड देन रूट्स की वजह से जो श्रंकन हो जाता है प्लांट, या तो फिर नेक्रोसिस, डेथ हो जाती है प्लांट सेल्स की. टॉक्सिन प्रोडक्शन, और माइकोटॉक्सिन्स मतलब फंजाई की एक क्लास है जो कि टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से हमारी जो क्रॉप यील्ड है वो कंटेमिनेट होकर टॉक्सिन हो जाती है. और जब हम वो उसको खाते हैं उस क्रॉप को जो कि ऑलरेडी टॉक्सिन से भरी हुई है, सो इट कैन कॉज रिस्क टू ह्यूमन हेल्थ टू. इनडायरेक्ट इफेक्ट, फंगल इन्फेक्शंस कैन वीकन प्लांट्स. जब प्लांट वीक होंगे ऑलरेडी जो क्रॉप यील्ड होगी, एग्रीकल्चरल यील्ड होगी, उन पर इफेक्ट होगा और वो जाहिर बात है वो रिड्यूस हो जाएगी. रेजिस्टेंस डेवलपमेंट, जैसे कि हमारी बॉडी में भी ऐसा होता है कि कोई पैथोजन इंट्रोड्यूस हो रहा है और हम कंटिन्यूसली उसकी मेडिसिन लेते हैं तो वो अक्सर ऐसा होता है कि वो जब नेक्स्ट टाइम हमें वो पैथोजन अटैक करता है तो वो रेजिस्टिव हो जाता है जो हम मेडिसिन लेते हैं. उस वजह से उसके हिसाब से वो अपने अंदर ऐसी एबिलिटीज पैदा करते हैं कि वो रेजिस्टेंट हो जाता है और फिर उस पर वो मेडिसिन काम नहीं करती. इस वजह से डॉक्टर हमें हेवी डोजेस देते हैं. तो लाइकवाइज ऐसा ही फंगस के साथ भी होता है. अगर फंगस किसी प्लांट में लग गई है तो अगर हम उनका ट्रीट कर रहे हैं तो मोस्टली फंगस अपने अंदर रेजिस्टेंस मैकेनिज्म पैदा कर देते हैं. तो फिर उनको हम जो भी फंजीसाइड्स दे रहे होते हैं उनके खिलाफ वो रेजिस्टेंस पैदा कर लेते हैं और अपने आप को मोर ड्यूरेबल बना लेते हैं. तो दीज वर थ्रेट्स ऑफ फंगस टू एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी. नाउ द नेक्स्ट स्लाइड इज इंपॉर्टेंस ऑफ अर्ली डिटेक्शन. जाहिर सी बात है हम बीमार होते हैं, जब तक डिजीज आइडेंटिफाई नहीं हो पाती हम उसका क्योर नहीं कर सकते, और अगर डिजीज आइडेंटिफाई हो ही नहीं रही तो वो हमारे लिए नुकसानकार है. तो इम्पोर्टेंस डिटेक्शन की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारे डेली लाइफ में, हमारे लिए भी. सो एज वेल एज फॉर प्लांट्स इन अवर एग्रीकल्चरल यील्ड टू. सो फर्स्ट इज प्रिवेंट स्प्रेज. जब हमारे डिटेक्शन हो गई कि भाई ये प्लांट खराब होने जा रहा है तो हम क्या करते हैं कि उस प्लांट को या तो कट ऑफ कर देते हैं या फिर उसको अलग कर देते हैं. क्योंकि हमें पता है कि ये खराब हो चुका है, अगर इसको हम दूसरे प्लांट्स के साथ ग्रो करवाएंगे तो इसकी जो पैथोजेंस है वो दूसरे प्लांट पर भी अटैक करेंगे. ठीक है, डिटेक्शन के बाद हमने स्प्रेडिंग को प्रिवेंट कर दिया. देन वी यूज टू मिनिमाइज डैमेज. अर्ली डिटेक्शन अलाउज फॉर प्रॉम्प्ट इंटरवेंशन मिनिमाइजिंग डैमेज टू द इन्फेक्टेड प्लांट. फंगल इन्फेक्शन कैन कॉज विल्टिंग, लीफ स्पॉट्स. यानी कि यही है कि जैसे हमने डिटेक्ट कर लिया, हमने उसको अलग कर दिया तो ऑब्वियसली जो डैमेज होगा वो अल्टीमेटली मिनिमाइज हो जाएगा. इफेक्टिव मैनेजमेंट. अर्ली डिटेक्शन enables the implementation of targeted management strategies that are more effective in controlling the disease.
different fungi may acquire different treatments, so accurate identification is essential in the right control measures. अब मैनेजमेंट किस लिहाज से, जाहिर सी बात है मुझे बुखार है तो मैं डायरेक्ट जाके मलेरिया की मेडिसिन नहीं खा सकती. फर्स्ट आई हैव टू आइडेंटिफाई मुझे बुखार किस वजह से है, जिस वजह से है वो मैंने आइडेंटिफाई कर दिया तो मैं वो स्पेसिफिक मेडिसिन यूज करूंगी. मुझे अगर डायबिटीज हो रही है तो डिफरेंट काइंड की डायबिटीज होती है, पहले मैं वो डायबिटीज अपनी आइडेंटिफाई करूंगी, उसके बाद मैं उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करूंगी, फिर मैं कोई मेडिसिन लूंगी. सो एज इन प्लांट्स और हमारी फील्ड्स में हमें पता तो चल गया खराबी है. क्या खराबी है, किस वजह से कॉज हुई, फंगस की बीमारी है और मैं पेस्टिसाइड अपने प्लांट को दे रही हूँ. फंगस तो खत्म हो गई नहीं, लेकिन मेरी क्रॉप यील्ड और भी ज्यादा खराब हो जाएगी क्योंकि उसको एक चीज की जरूरत नहीं है, मैं फिर भी दे रही हूँ. सो इट इज एसेंशियल कि पहले हम सोचें, देखें, आइडेंटिफाई करें, टेस्ट करें कि भाई बीमारी है क्या, किस वजह से खराबी हो रही है. जिस वजह से खराबी हो रही है इलाज भी हम उसी हिसाब से करेंगे. कॉस्ट सेविंग्स, ट्रीटिंग फंगल इन्फेक्शन अर्ली इज जनरली मोस्ट कॉस्ट सेविंग देन डीलिंग विद वाइड स्प्रेड आउटब्रेक्स. थोड़ा इतना सा मसला होता है ना, उसको पकड़ लेंगे नुकसान कम होगा. 1 मीटर की मेरी क्रॉप खराब हो चुकी है, पीछे मेरे 10 मीटर की क्रॉप पड़ी हुई है, मैं उस 1 मीटर को रिड्यूस कर दूंगी, उनमें से काट दूंगी तो पीछे 10 बच जाएंगे. लेकिन मैं इंतजार करूंगी तो वो 6 मीटर खराब हो गए और पीछे 4 बची, तो क्या हो गया, अर्ली डिटेक्शन हुई नहीं, मेरी क्रॉप ज्यादा से ज्यादा रोटन हो गई, खराब हो गई. तो इसलिए अर्ली डिटेक्शन इज नेसेसरी. अब आते हैं, मैंने आपको बताया कि आइडेंटिफिकेशन करनी है. आइडेंटिफिकेशन कैसे करनी है, कौन से मेथड्स होते हैं. सो माय नेक्स्ट स्लाइड इज अपॉन मेथड्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंगल डिजीजेस इन प्लांट्स. आइडेंटिफिकेशन में डिफरेंट मेथड्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है. सो हम हर वो मेथड डिस्कस करेंगे. क्लिनिकल सिम्टम्स, ऑब्जर्वेशन ऑफ सिम्टम्स सच एज डिस्कलरेशन एंड दीज ऑल काइंड ऑफ, पहले ये सिम्टम्स हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे. क्लिनिकल सिम्टम्स, ऑब्जर्वेशन ऑफ सिम्टम्स सच एज डिस्कलरेशन एंड दीज ऑल काइंड ऑफ, पहले ये सिम्टम्स हम देखेंगे, सिम्टम्स हैं, उसके बाद हम उसको सिम्टम्स के लिहाज पर आइडेंटिफाई करेंगे. देन इज माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन. माइक्रोस्कोप में हम रख के देखेंगे कि भाई ये वेदर ये कौन सी फंजाई से बिलोंग करता है, कौन सी क्लास से ये फंजाई बिलोंग करता है. कल्चर करेंगे, अप्रोप्रिएट मीडिया में हम उनको ग्रो करवाएंगे और फिर हम कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे कि भाई ये हमने जो लिया था सैंपल में तो वो कौन सा फंगस था, कैसे ग्रो हो रहा है, उनके कैरेक्टरिस्टिक क्या है. और फिर कैरेक्टरिस्टिक जानने के बाद हमें मालूम हो जाएगा कि ये फला फंगल इन्फेक्शन है या फला फंगस है, फिर हम उसके हिसाब से उसकी ट्रीटमेंट करेंगे. मॉलिक्यूलर टेक्निक्स हो गई, सीरोलॉजिकल टेस्ट वगैरह हो गए, प्लस में बायोप्सी, रेडियोलॉजिकल इमेजिंग, मास स्पेक्ट्रोमेट्री, एंटी फंगल सस्पेक्टेबिलिटी टेस्टिंग. ये सारे के सारे जो टेस्ट हैं इनकी वजह से हमें मालूम पड़ जाएगा कि क्या चीज है, मर्ज क्या है. जड़ पकड़ेंगे तो ये आगे दवा बना सकेंगे. अब ये तो सारे थे वो मेथड्स जो कि हम लैब्स में परफॉर्म करते हैं. नाउ जैसे कि मेरा टॉपिक है कि टेक्नोलॉजी बेस्ड कैसे, सो नाउ वी विल डिस्कस अपॉन इट. रोल ऑफ AI टेक्नोलॉजी इन फंगल डिजीजेस आइडेंटिफिकेशन. AI technology plays a significant role in fungal diseases identification in plants by offering innovative solutions for early detection, accurate diagnosis, and effective management. Here's how AI contributes: image recognition, pattern recognition, predictive modeling, genomic analysis, decision support system. 6 is remote sensing. Now simply मैंने अपने मोबाइल में AI ऐप डाल दिया. मुझे क्या करना है, जस्ट आई हैव टू क्लिक द पिक्चर. मैंने जैसे वो पिक्चर क्लिक की, उस AI एंड्रॉइड एप्लीकेशन के अंदर मल्टीपल जो कि साइंटिस्ट हैं, मल्टीपल जो कि एग्रीकल्चरिस्ट हैं, उनकी डेटा ऑलरेडी मौजूद होगी. इट विल सजेस्ट मी कि ये जो आपकी डिजीज है ये वाली डिजीज हो सकती है. डिजीज का मुझे नाम पता चल गया. साइड में मेरे पास बहुत सारी दूसरी चीजें भी आ जाएंगी कि हम इनको प्रिवेंट कैसे करेंगे, और अगर प्रिवेंशन पॉसिबल नहीं है तो हम इसका क्योर कैसे करेंगे. क्योर होने के बाद हम इसको कैसे कैसे संभाल के रखेंगे ताकि इस पर दोबारा वो चीज इफेक्ट ना हो. मूविंग टू माई नेक्स्ट स्लाइड. बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग एंड्रॉइड एप्लीकेशंस फॉर ऑन दी स्पॉट आइडेंटिफिकेशन. अब मेडिसिनल जो कि ट्रीटमेंट्स हैं, जो कि मेयर्स हैं जिसमें हम टेस्ट करते हैं, उनके लिए हमने क्या करना होता है, प्लांट को लेकर आना है लेबोरेटरी में, एंड देन वी हैव टू टेस्ट डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट ऑन इट. और फिर हमें मालूम पड़ता है कि क्या क्या हो रहा है. उसमें टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है, बट हमारे पास एंड्रॉइड ऐप है तो हम जस्ट फोन लेंगे, वी हैव टू क्लिक जस्ट वन पिक्चर और हमें ऑन दी स्पॉट आइडेंटिफिकेशन हो जाती है. तो हम चलते हैं उनके बेनिफिट्स की तरफ. पोर्टेबिलिटी, वी कैन, ये हमारा मोबाइल फोन है, हम कहीं पर भी लेकर जा सकते हैं.
हमें अब पूरा लैब अपने कंधे पर रख कर तो कहीं जा नहीं सकते, लेकिन फोन पोर्टेबल डिवाइस है, मोबाइल डिवाइस है, जहां पर हम जा रहे हैं हम अपने साथ लेकर जा रहे हैं। सो पोर्टेबिलिटी, रियल टाइम डायग्नोसिस, यूजर फ्रेंडली इंटरफेस, ऑफलाइन फंक्शनैलिटी। ऑनलाइन तो होता ही होता है, ऑफलाइन भी बहुत सारे एप्स ऐसे हैं जो कि ऑफलाइन भी डेटा कलेक्ट करते हैं और वो हमें सजेस्ट करते हैं। डेटाबेस इंटीग्रेशन, बहुत सारी डेटा ऑलरेडी हमारे उन एप्स में मौजूद है, क्योंकि एक कोई ऐप जनरेट होता है वो किसी एक बंदे की राय पर नहीं होता। मल्टीपल स्कॉलर्स उसमें आते हैं, मल्टीपल एग्रीकल्चरिस्ट आ गए, मल्टीपल साइंटिस्ट ने अपनी अपनी जो राय वगैरह दी है वो सारी की सारी इकट्ठा जहां पे होती है, वहां से एक AI बेस्ड ऐप की जनरेशन होती है। इंटीग्रेशन विद अदर टेक्नोलॉजीज, और फिर दूसरी जो टेक्नोलॉजीज हैं, हमें ओवरऑल 1 मिनट के अंदर अंदर हमें पता चल गया, आइडेंटिफाई हो गई डिजीज, और फिर हम आगे उसकी जो स्ट्रेटेजीज हैं वो जो हमें सजेस्ट की जा रही है वो हम अप्लाई करेंगे और आगे हम अपना काम बढ़ाएंगे। उसके बाद है सम ऑथेंटिक एंड्रॉइड एप्लीकेशंस फॉर द फंगल डिजीजेस आइडेंटिफिकेशन। सो मैंने जस्ट वो चूज की है एप्लीकेशंस जो कि मोर रिकमेंडेड है, विच कंटेन्स 5 स्टार्स ऑन देयर रिव्यूज। क्योंकि जब भी हम प्ले स्टोर पर जाते हैं एप्स में, पहले हम स्टार्स काउंट कर रहे होते हैं कि इनके रिव्यूज क्या है। रिव्यू के बेस पे हमें पता चलता है दैट वेदर दिस ऐप इज वर्किंग और नॉट। सो ऑन द वेरी फर्स्ट ऑफ द लिस्ट वी हैव प्लांटिक्स ऐप। अब प्लांटिक्स ऐप में क्या है, हमने जाना है अपनी, पहले तो अपने फील्ड सजेस्ट करनी है। पहले ही बता देना है कि हमारी क्रॉप जो है वो टोमेटो की है, पोटेटो की, किसी भी चीज की वो हम देंगे। फिर उसमें यह है कि हम फर्स्ट स्टेज से लेकर ग्रोइंग स्टेज से लेकर उसकी यील्ड की स्टेज तक की सारी मालूमात उससे लेंगे। कोई खराबी हो गई वो भी हम देखेंगे, कोई डिजीज आ गई उसको भी हम आइडेंटिफाई इसी ऐप से कर लेंगे। उसकी ग्रोइंग जो स्ट्रेटेजीज है, कैसे इंक्रीज करनी है, यील्ड को कैसे बढ़ाना है, ये सारा का सारा हम इस ऐप से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मुख्तलिफ अबाउट मल्टीपल साइंटिस्ट बैठे हुए हैं जो कि हमें राय देते हैं ऑनलाइन। नेक्स्ट इज एग्रियो ऐप। एग्रियो ऐप भी लाइकवाइज प्लांटिक्स ऐप है, बट इट इज मोर इसके थोड़ी रेटिंग कम है, बट मोस्टली जो रेटिंग आती है वो प्लांटिक्स ऐप में आती है। अब एग्रियो एक ऐसा ऐप है जहां पर हम एग्रीकल्चरल हर मामला देख सकते हैं। डिजीजेस आइडेंटिफिकेशन हो गई, ग्रोइंग ऑफ यील्ड हो गए, सस्टेनेबिलिटी हो गई। उसके अलावा इस ऐप में हम अपने एग्रीकल्चर जो यील्ड है उसको हम सेल आउट भी कर सकते हैं। मेरा एग्रीकल्चर हुआ है, मुझे प्रॉफिट, मैं देखूंगी कि भाई प्रॉफिटेबल मुझे कहाँ पर मार्जिन मिल रहा है, और पहले मैं पूरी अपनी डिटेल्स इसमें पुट करूंगी कि मेरा जो एग्रीकल्चर यील्ड हुआ है उसमें दाना इतना मोटा है। फॉर एग्जांपल वीट है, वीट की मैं मेजरमेंट लिखूंगी कि मेरे वीट का जो साइज है वो इतना है, मेरा कॉफी बीन, मेरा सोयाबीन का जो साइज है वो इतना है। फिर जहां पर मुझे बहुत अच्छी इफेक्टिव ग्रोथ है मेरी, तो फिर उस हिसाब से कस्टमर्स मुझसे वो परचेज करेंगे। एग्रो ऐप जो है वो डेवलपर्स ए ग्रुप कंपनी थी पोर्टुगाल में। उन्होंने अपने फार्मिंग स्किल्स को बढ़ाने के लिए ये ऐप जनरेट किया था, ताकि जो कि फार्मर्स हैं उनको इजीली मॉडर्नाइज कर सके वो वर्ल्ड के साथ, और वो अपनी जो एग्रीकल्चरल सस्टेनेबिलिटी है उसको और ज्यादा इफेक्टिव बना सके। नेक्स्ट ऐप है सिंजेंटा क्रॉपवाइज ग्रोवर ऐप। अब इस ऐप में भी लाइक अदर 2 ऐप्स हम अपनी क्रॉप की ग्रोथ को भी अच्छा कर सकते हैं, हम अपनी क्रॉप सस्टेनेबिलिटी बढ़ा सकते हैं, प्लस में हम इसमें लगी हुई जो डिजीजेस हैं विथ जस्ट 1 क्लिक हम पिक्चर लेंगे, दिखाएंगे और वो जाएगी, प्रोसेस होगी, और मुख्तलिफ साइंटिस्ट, मुख्तलिफ एग्रीकल्चरिस्ट या तो फिर उसके अंदर जो डेटाबेस स्टोर्ड है वो हमें बताएंगे कि इस क्रॉप में क्या मसला है और इसको ट्रीट कैसे करेंगे, सिम्टम्स जो है हम वो बताएंगे और हमें वो हर इंफॉर्मेशन मिलेगी। सिंजेंटा क्रॉपवाइज ग्रोवर बनाया गया है सिंजेंटा अ ग्लोबल एग्री बिजनेस कंपनी। अच्छा, अब इस कंपनी ने ना सिर्फ ऐप बनाया है, इस कंपनी ने अपने ऐप जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी ग्रो करवाने के लिए बहुत सारे फंजीसाइड्स, पेस्टिसाइड्स और खाद वगैरह हर चीज बनाए हुए, यानी कि ये एक मल्टी डायरेक्शनल कंपनी है जिन्होंने अपने एंड्रॉइड एप्स भी जनरेट किए और अपने लोकल जो आइटम्स हैं सस्टेनेबिलिटी बढ़ाने के लिए, ग्रोथ बढ़ाने के लिए और इवन डिजीज क्योर करने के लिए भी जितने भी पाए जाते हैं दवाई वगैरह, वो सब कुछ इन्होंने बनाया हुआ है। एग्रो बेस ऐप भी इन्हीं एप्स की तरह काम करता है।
हमने पहले अपनी क्रॉप डिसाइड करनी है कि हम क्रॉप कौन सी ग्रो कर रहे हैं, और उसके बाद उसमें हम पूरी इन्फॉर्मेशन डालेंगे डे 1 to टिल लास्ट डे। उसके बीच में अगर कोई डिजीज हो जाती है तो वो भी डिटेक्शन हो जाएगी, और उस डिजीज को क्योर से लेकर क्यों हुई, आपने एक्स्ट्रा वाटरिंग तो नहीं कर दी, या आपने वाटर को कम कर दिया, या आपकी मिट्टी खराब थी, या आपने, क्योंकि हम जब एग्रीकल्चरल लैंड पर जाते हैं तो जो सॉइल है, सॉइल में भी हम देखते हैं कि हम कोई ऐसा मार्जिन तो नहीं रख रहे कि जहां पर फंगस ग्रो हो जाए, क्योंकि मैंने जब आपको बताया सॉइल बोर्न डिजीजेस, तो वो फंगस प्लांट में एक्यूमुलेट नहीं करता, वो सॉइल में एक्यूमुलेटेड होता है, जो कि रूट्स को डैमेज करता है, जिसकी वजह से प्लांट जो है वो मर जाता है। तो इसमें हर वो किस्म की इंफॉर्मेशन होती है इन एप्स में। एग्रो बेस्ड एप्स इज अ comprehensive agricultural app that offers features related to plant diseases, pest and weed management, while it provides valuable information and tools for crop management, including pest and diseases identification. Its focus is broader and covers various aspects of agriculture. The app integrates a vast database of agricultural pests, diseases and weeds, along with agronomic information. Agronomic information, जैसे मैंने आपको बताया कि ओवरऑल सॉइल से लेकर उसकी ग्रोथ से लेकर हर चीज की इंफॉर्मेशन इस ऐप के पास है। इट विल गाइड यू टू हाउ टू ग्रो योर क्रॉप्स। नाउ मेरी नेक्स्ट स्लाइड में आई हैव वर्कड अपॉन एग्रोनॉमिक इंफॉर्मेशन, जैसे मैंने आपको बताया कि ओवरऑल सॉइल से लेकर उसकी ग्रोथ से लेकर हर चीज की इंफॉर्मेशन इस ऐप के पास है। इट विल गाइड यू टू हाउ टू ग्रो योर क्रॉप्स। नाउ मेरी नेक्स्ट स्लाइड में आई हैव वर्कड अपॉन प्लांटिक्स। सो प्लांटिक्स पर मैंने वर्क करने के बाद एक मैंने प्लांट लिया जिस पर मुझे शक हुआ कि भाई इसमें कोई फंगल डिजीज है। सो आई जस्ट टुक एन इमेज लेने के बाद मैंने छोड़ दिया। उसके बाद मुझे मुख्तलिफ राय दी गई वहां पर मौजूद जो बैठे हुए एग्रीकल्चरिस्ट कि पाउडरी मिल्ड्यू आपके प्लांट को इफेक्ट कर रहा है। सिम्टम्स मुझसे पूछे गए, मैंने सिम्टम्स बताया। उसके बाद मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिवेंटिव मेयर्स पहले बताया गया कि हाउ टू रेजिस्ट, हाउ टू टॉलरेट द प्रेशर और हाउ टू टॉलरेट दैट डिजीज। उसके बाद मुझे ये भी समझाया गया व्हाट कॉज्ड इट, कॉजेस क्या थी। उसके अलावा रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे कम्युनिटी के वो भी मुझे बताया गया कि ये भी क्वेश्चंस आ चुके हैं इन प्लांट के हवाले से, आप भी इनको स्टडी कर लें ताकि आप जो अपना प्लांट ग्रो कर रहे हैं उसमें आपको ज्यादा नॉलेज होगी। मोर आपके जितने पास नॉलेज होगी आपका जो ग्रोथ यील्ड होगा वो उतना ज्यादा ऑप्टिमम लेवल तक जाएगा। अब आप आ जाते हैं, हमने देख लिया कि भाई जैसे हम किसी और तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं डिजीजेस, मेडिसिनल क्लिनिकल हर चीज मैंने आपको बताई। एंड देन आई सजेस्ट यू के प्लांट जो कि एंड्रॉइड एप्स हैं उनमें हम कैसे करते हैं। So now my next slide is upon difference between using Android application versus other methods of identification of fungal diseases of plant. Android ऐप के हम अगर डिफरेंस देखते हैं और अदर मेथड्स के देखते हैं तो AI uses images for the identification of disease. It's a modern method of identification. Other methods may also contain some traditional ways of identification and laboratory-based identification. Number second point is it consumes less time for identification than any laboratory method. It's for Android apps. Okay. Now other methods, it consumes more time than Android app identification. Third point for Android app is it gives vast range of knowledge about disease in very short period of time. Other methods, these methods can only tell us about the identification of disease but can't provide more information about the disease. Android apps, it requires less amount of money than other methods. Other methods, it requires more amount of money to buy tools and chemicals to identify. Android app, it's mobile, so you can identify disease anywhere you want. Other methods, you have to go in laboratory for identification. Android apps easy to use and other methods may contain difficult methods to identify the disease. और बहुत सारे लोग पढ़े लिखे नहीं है तो वो डिजीज आइडेंटिफाई करने के लिए वो सब कुछ हर चीज वो नहीं कर सकते। वी आर बॉटनिस्ट, हमें पता है कि केमिकल कंसंट्रेशन कैसे रखनी है, कैसे तरीके से हमने टेस्ट करना है, लेकिन हर किसी फार्मर्स को तो नहीं पता होगा ना कि कैसे मुझे सेटअप करना है। Android apps. Sometimes results may fluctuate than the original result because of poor services of apps, but majority results are accurate.
ये जो पॉइंट है ये ओवरऑल पूरी की पूरी सर्च हिस्ट्री एवेल्युएट करने के बाद मैंने ऐड की है. अदर मेथड्स, results are mostly accurate but sometimes it creates wrong results if we do not use proper methods. So other methods यूज करने के लिए पहले तो हमें एजुकेटेड होना लाजमी है. देन हमें लेबोरेटरिकल वर्क आना चाहिए, हमें केमिकल कंसंट्रेशन, हाउ टू यूज केमिकल्स, हाउ टू यूज डिफरेंट मशीन्स एंड टूल्स, ये हमें आना चाहिए. उसके बाद हम अदर मेथड से आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि अपने तुक्के से एक हाइपोथेसिस जनरेट करने के बाद भी हमें एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है रिजल्ट तक पहुंचने के लिए. तो हम तुक्के नहीं लगा सकते. लेकिन एंड्रॉयड ऐप के जरिए हमने जस्ट 1 क्लिक की दूरी पर आइडेंटिफाई करना है. आइडेंटिफाई हो गई, उसके बाद हमने अपनी मेडिसिन पर फोकस करना है. नाउ पॉजिटिव आउटकम्स एंड इम्पैक्ट ऑन क्रॉप यील्ड्स एंड एग्रीकल्चरल सस्टेनेबिलिटी बाय यूजिंग AI एप्स. About 70% Android app users, farmers worldwide, are satisfied with the use of Android apps for detection of disease. Android apps provide early detection of disease, so it is easy to treat the disease at very instant and causing less damage to crops. Many farmers use Android apps because of accessibility and affordability. By accurately identifying diseases in plants, Android apps has improved plant health too. By promoting early detection, targeted interventions, reduce use of chemicals and informed decision of making, AI Android apps contribute to sustainable agriculture. Now the last slide is usage of AI Android apps for diseases identification in Pakistan. As we all know that Pakistan में literacy rate is below the average. आम इंसान ही बहुत कम पढ़ा लिखा है. So can you imagine farmers कितने पढ़े हुए होंगे? मोस्टली तो पढ़े ही नहीं हुए, तो उन्होंने कभी स्कूल देखा भी नहीं होता. So it is mentioned that age literacy rate of Pakistan is lower than other countries. Many of farmers can't get advantage of these Android apps. वर्ल्ड वाइड ये इतने एप्स स्प्रेडेड हैं बिकॉज उन्हें फार्मर्स को भी तरबियत दी जाती है, तालीम दी जाती है. हमारे इधर इतनी वो लिटरेसी रेट हाई नहीं है, तो हमारे जो कि फार्मर्स हैं वो इन चीजों से एडवांटेज हासिल ही नहीं कर पाते. वो अपने वही पुराने मेथड्स, हाइपोथेसिस जनरेट कर दिया, अरे इनमें तो इसमें तो ये कीड़ा लग गया है, पता भी नहीं है कि लगा क्या है, आइडेंटिफाई होता भी नहीं है कि भाई इसमें फंगस लग गया है, इसमें कोई और पेस्ट आ गया है, या इसमें किसी और पैथोजन ने अटैक कर दिया. बस अपने मुंह फंजीसाइड्स डाल देंगे, पेस्टिसाइड डाल देंगे. उसकी वजह से होता है कि हमारी एग्रीकल्चरल जो यील्ड होती है वो पीछे चली जाती है. लेकिन हमें प्रॉपर मेथड्स पता हो और हमारे जो फार्मर्स हैं वो एजुकेटेड हों, तो वो हर चीज से एडवांटेज हासिल करके अपनी क्रॉप यील्ड को मजीद बढ़ा सकते हैं. ओनली 2.1% फार्मर नोज अबाउट दीज एप्लीकेशंस इन पाकिस्तान. ओनली 2.1%. हाँ, एग्रीकल्चरिस्ट हैं, उन्हें पता है, बट जो फार्मर्स हैं जो कि एक्चुअली वर्क कर रहे हैं फील्ड्स में, उन्हें इन एप्स के बारे में नहीं पता. उन्हें इन एप्स तो क्या ओवरऑल जो कि दूसरे क्लिनिकल और मेडिसिनल जो कि ट्रीटमेंट्स वगैरह हैं उनके बारे में भी नहीं पता. कंक्लूजन, AI artificial intelligence has made our lives easier and just a click is needed to solve the problem. Android apps for agricultural upgrading are working excellently with so many benefits and with short expenses of time and money. We should educate our farmers and agriculturists to use those beneficial applications for getting sustainable growth of agricultural fields. By promoting the rate of usage of AI Android application can modernize our state to run with the modern world. That's all for my today's presentation. Thank you so much for your precious time.